Hello everyone, welcome back to the Brinipedia YouTube channel. My name is Anand and I welcome all my viewers, all my students who are watching this video right now. I am just recording this session at 10 a.m. morning. So from my side, very good morning to all of you. And we have started a series of videos on SBI PO मेंस एग्जाम राइट। अगेन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, सो आपके SBI PO मेंस एग्जाम के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मई को आपका एग्जाम है राइट। सो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेंस एग्जाम्स के, उनको आपके तक पहुंचाने का हमने जिम्मा उठाया है राइट। हम हर एक वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब आप वीडियो देखो देन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम फुल्ली 100% राइट। दिस इज द मोटिव इन फ्रंट ऑफ अस, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में, आपके सफलता में हम एक अपनी अपने तरफ से एक प्रयास कर सके राइट। और एक ही मोटो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं सारे वीडियोस को। बस इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, बस तू रख जज्बा। This is the only motto we have at Brinipedia Skills for all the students, those who are going to appear for SBI PO means exam, right? So without wasting any time, let's start the video. Let's start the previous year memory based questions, right? So 21 का हमने start किया था, right everyone? 21 से ही एक दो क्वेश्चंस और मैंने लेता हूं और आपके सामने रखता हूं उन क्वेश्चंस को, right? So as you can see, my name is Anand and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC and railways exam, right? I'm just recording the session at like 10 a.m. in the morning. So very good morning to all of you. And again, you can see the topic, right? Memory based हम questions कर रहे हैं. Again ना, at this point of time, the more you're going to practice, the more you're going to practice the different sets ना, DI के, CASLET के, data analysis के, right? The more you're going to get, the more you're going to be effective during the exam of mains, right? So let's begin the session. Let's see what is the very first first thing we have here. Let's see, guys. Right. This is the first set we have. Everyone, are you able to see this? Again, I am recording the session, all of you. If you have any doubt, please do let us know in the comment section so that we can see your comments and we try to reach you as soon as possible, right? टेबल है राइट, टेबुलर फॉर्म में आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, एंड इफ यू हैव वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम होता है जस्ट टू फिगर इट आउट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो अगेन ना, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव बेस्ड ऑन दैट वी हैव 4 डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट? हम उनको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जस्ट रीड द डाटा वंस अगेन। I'm just reading the data, all of you. Again, hope so. I'm just hoping that my audio and the video is totally fine for all of you, right? I'm just recording it now. As I can see, everything is looking fine in front of me, right? Then I'm moving forward, right? अगर कोई दिक्कत हो, guys, please do let us know in the comment section. We definitely going to change or we try to correct it as soon as possible, right? क्या है, read the given table carefully and answer the following questions, right? Given table shows quantity of milk distributed by milkman and the quantity of milk and water added and the quantity left after adding water and milk, right? अगर यहाँ देखो ना, 3 लोग हैं यहाँ पे। एक मिल्कमैन हैज x लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 5:1। ही गिव्स मिल्क टू द 3 पर्सन, अमित, गरिमा एंड मधु। ये 3 लोगों को दूध पहुंचाता है मिल्कमैन। अमित, गरिमा एंड मधु, राइट? 3 लोग हैं। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप यहां देखो ना, दिस डाटा इज मिसिंग, दिस डाटा इज मिसिंग, दिस वन इज मिसिंग, दिस वन इज मिसिंग एंड दिस वन इज मिसिंग, राइट? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए,
यहाँ पे एक लाइन लिखा रहता है कि जो भी आप डाटा कैलकुलेट करोगे आपको सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस का डाटा यूज करना है, राइट। फॉर एन एग्जांपल हम देखेंगे इसमें कुछ डाटा ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करके रखेंगे और वो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में जाके यूज होगा, राइट। So that is the meaning of this particular line. Data calculated from solving one part can be used in the calculation of the other parts, right? This is important. This is the one of the takeaway in this type of questions, right? चलो स्टार्ट करते हैं अगेन ना। देखो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी गिवन टू द क्लाइंट, मतलब अमित को 120 लीटर मिल्क दिया गया है, राइट। उसके बाद 80 लीटर उसने पानी उसमें ऐड किया है, सॉरी 80 लीटर मिल्क ऐड किया है, 0 लीटर वाटर ऐड किया है, और क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर एडिंग वाटर एंड मिल्क इज गोइंग टू बी कितना, 560। Right, guys, again, if you are watching this video, you can pause the video and you can try to solve this question, right? All of you, I'm just requesting this to all of you. अगर आप वीडियो देख रहे हो, try to solve this question, all of you. Again ना, this ratio is given, milk and water का जो रेशियो है, milk plus water is 5:1। कहने का मतलब है कि टोटल में से अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो टोटल में से कितना होगा, अगर टोटल में से करें तो ये 5/6 होगा आपका मिल्क, और दूसरा क्या होगा, 1/6 होगा वाटर, राइट। मान लो ना, अगर मैं कहता हूं अमित अमित को कितना दिया है, 120 लीटर दिया है, तो इसमें कितना पानी कितना दूध, 100 लीटर मिल्क एंड 20 लीटर पानी, राइट। आई बात समझ में आप लोगों को ये, ठीक है। दिस इज द डाटा गिवन। अगेन डाटा आप एक बार देख लेना, देन वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, एंड लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द गिवन डाटा। डाटा ये है कि if the cost of if the cost of 1 liter mixture is 45, right। 1 लीटर मिल्क का जो दाम है वो 45 रुपए है, राइट, 45। ए डिस्काउंट ऑफ 6.66, तो आप ध्यान रखना 6.66 जो परसेंट होता है, दैट इज 1/15 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। 11.1 मतलब 6.66 का डिस्काउंट दिया है अमित को, राइट, अमित को दिया है। एंड मधु को कितना दिया है, मधु को दिया है डिस्काउंट, दैट इज 11.11%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अगेन ये पता बेसिक चीजें हैं, पता होगी आप लोगों को। देन बताना क्या है, देन मनी गिवन बाय अमित इज व्हाट परसेंट लेस देन द मनी गिवन बाय मधु, राइट। तो एक बार देख लेते हैं, डिस्काउंट की बात करें दोनों के लिए सेम है, तो अगर मैं रेट फाइंड करूं तो रेट क्या हो जाएगा, 45 रुपए है, 45 रुपए यानी 1/15 इज गोइंग टू बी 1/15 ऑफ 45 इज गोइंग टू बी 3। तो अमित के लिए रेट क्या लगेगा, अमित के लिए जो रेट लगेगा वो लगेगा 45 माइनस 3, दैट इज गोइंग टू बी 42 पर लीटर इज द अमाउंट पेड बाय अमित। मधु के लिए अगर देखें, सो व्हाट वुड बी द रेट, 1/9, 1/9 ऑफ 1/9 ऑफ 45, दैट इज गोइंग टू बी 5। सो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट इज गोइंग टू बी 45 माइनस 5, 40 पर लीटर, राइट। अब क्वांटिटी देख लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बतानी थी आपको, क्वांटिटी क्वांटिटी आपकी मतलब क्वांटिटी आपको बताना है मनी, कितना मनी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो वो फाइंड होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेट। तो अगर यहाँ पे देखूं, अमित का क्वांटिटी कितना था बेटा, अमित ने कितना लिया था, 120 लीटर, राइट। और मधु मधु ने लिया है 200 लीटर। तो यहां से हम इनका लाइक एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, लाइक हाउ मच दे हैव स्पेंड, कितना पैसा इनका लगा। सो मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा अमित के लिए 42, और यहाँ पे होगा मल्टीप्लाइड बाई कितना 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 40, विच इज गोइंग टू बी 8,000 दिस वन। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका
120 है, मल्टीप्लाइड बाई 40 कर लेते हैं, 4800 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 4800 हो जाएगा, मतलब 120 इंटू 40 करे तो 4800, और आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 200, कितना 40 और हो जाएगा, विच इज 05, मतलब कितना 5040 विल बी द मनी स्पेंड बाय द अमित, राइट। कितने का डिफरेंस है बेटा इसमें, दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 2960, राइट। अब ये बताना है आपको कि, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देन मनी गिवन बाय अमित इज व्हाट परसेंट लेस देन द मधु, राइट। तो कितना कम कम पैसा दिया है अमित ने, 2960, राइट। और किससे कंपेयर करके बेटा, किससे कंपेयर करके, बाई मधु, और मधु ने कितना दिया है 8000। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2960 अपॉन 8000 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो 8000, that is going to be 37%. So 37% will be the right answer, means option number second will be the right answer, right everyone? Guys, got the point? Everyone? अगर कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एनीवन हैविंग एनी डाउट गाइस, प्लीज प्लीज डू लेट अस नो। ठीक है, चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। ठीक, नाउ next question says if 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 value of R is equals to 50, right, then the quantity of water added is what percent of quantity of milk added, right। थोड़ा जाके पीछे देख लें क्या क्या है आपके पास। तो आपके पास R है, R इज इक्वल्स टू 50 है, राइट। तो अगर R की वैल्यू 50 दी हुई है यहाँ पे, तो R की वैल्यू 50 है तो 3R है, राइट। यहाँ से अगर आप डाटा देखो ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड 3R है, और आपका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड वो R है, राइट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फिर से वापस जाते हैं, 3R और R, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, यहाँ पे है आपके पास है, यहाँ पे था 3R और यहाँ पे था R, राइट। तो ये है वाटर एडेड और ये है आपका मिल्क एडेड, राइट। तो वाटर एडेड कितना हो गया है, दैट इज 50, तो मिल्क एडेड कितना हो जाएगा 150, राइट। तो आपसे ये पूछा है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, मतलब 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, so that is going to be 1 upon 3, that is 33.33%. I think there will be a like mistake in writing the options. So nearby we can click option number first. Right, everyone? Guys, got the point now? Fine. चलो, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। Let me erase the data and then let me move to the next question, right? So it says if y is equals to 25% of the mixture of milk and milk and water left with the milkman, and the ratio of milk and water in M is 9:1, right? फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू, y की जो वैल्यू है विच इज 25% ऑफ मिक्सचर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क प्लस वाटर लेफ्ट विद द मिल्कमैन। अच्छा, लेफ्ट विद द मिल्कमैन, तो कितना बच गया था बेटा, आई थिंक मेरे हिसाब से 560 था। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 560 है, ठीक है, 560 रह गया है। सो 560, राइट, 560 है,
तो इसका 25% कितना होगा? 25% ऑफ 560, राइट, दैट इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा ये? 140। सो 140 इज द लेफ्ट ओवर, राइट, मतलब y के y की वैल्यू हो जाएगी, राइट, y की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। अच्छा, अगर y की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 440, 440, ठीक है। हम्म। हम्म। कुछ रह रहा है क्या यार यहाँ पे? एक मिनट। हम्म, कुछ रहता है क्या? फिर क्या है यहाँ पे आपके पास? हम्म। 560 था ना, ठीक है। 20 इज, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार, मैंने थोड़ी यहाँ पे ये गलती कर दी, थोड़ा ये डाटा, एक्चुअली होता क्या है ना कि डाटा यहाँ से दिखता नहीं है। और यहाँ पे ये क्या था, y की वैल्यू क्या थी? अच्छा, y की वैल्यू है आपके पास, गरिमा को कितना दिया गया है, राइट, दिस इज गरिमा ना। y इज व्हाट? गरिमा, राइट। सो 140 लीटर्स आपने दिया है गरिमा को, ठीक है। गरिमा को दे दिया है, तो रिमेनिंग मिक्सचर बचा कितना? रिमेनिंग मिक्सचर जो बचा है आपका वो है 560 वॉज द टोटल माइनस 140, दैट इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा ये? 420 लीटर्स, राइट। अब ये 420 लीटर्स में, अच्छा 420 लीटर्स में कुछ एक्स्ट्रा भी तो था ना बेटा? एक्स्ट्रा क्या था यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, कि इसने 60, सॉरी, यहाँ पे 60 लीटर मिल्क ऐड हुआ है, और वाटर भी कितना ऐड हुआ है? 10 लीटर, राइट, दोनों चीजें ऐड हुई हैं। वापस चलते हैं वहीं पे, उसी कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो 60 यहाँ पे वाटर आपने ऐड किया है, 60 आपने मिल्क ऐड किया है, और 10 वाटर ऐड किया है, तो टोटल बन कितना गया आपका? दैट इज गोइंग टू बी 480, 490, राइट। एंड दिस इज मिल्क एंड वाटर रेशियो एम, ये होगी आपकी एम की वैल्यू, राइट, एम की वैल्यू आ गई। अब ये 490 को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 9:1 में। 9 इज मिल्क एंड क्या है, 1 इज वाटर। आपको बताना क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? सो 49 into 9, which is going to be which is going to be 44. So 441 means option number second will be the right answer, right? Getting my point now, guys? Again, we have like restricted space to write the things, right? So पिछले जो मतलब पीछे जो डाटा था उसको एक बार थोड़ा सा रीड करना पड़ा, y की वैल्यू थोड़ा ध्यान में नहीं रही मेरी। y इज फॉर द गरिमा, कि गरिमा को कितने लीटर ऑफ मिल्क मिला है फ्रॉम द मिल्कमैन, सो दैट इज द y। एंड रिमेनिंग मिक्सचर 590 में से बच कितना जाएगा? 420। और उसमें आपने ऐड क्या किया है? ऐड किया है आपने, ऐड किया है 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर, दैट इज गोइंग टू बी 490, दैट इज गोइंग टू बी एम, रिमेनिंग मिक्सचर, राइट, गरिमा को देने के बाद, और उसको हमने 9:1 में डिवाइड कर दिया है, दैट्स ऑल, राइट। नाउ लेट्स द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, इन दिस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा। एक मिनट, मैं चलता हूं आगे आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आपने डाटा ठीक से देखा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या है? जो कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1, राइट, इनिशियल रेशियो है, इनिशियल मिक्सचर है, राइट, इनिशियल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, राइट। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो वहां पे, तो हमने अमित को कितना दिया है? हमने अमित को दिया है 120 लीटर, राइट। फिर हमने मिल्क ऐड कितना किया है? मिल्क ऐड किया है 80 लीटर्स।
और वाटर ऐड किया है हमने, मैं लिख देता हूं 0 लीटर्स, और रिमेनिंग कितना बच गया है, रिमेनिंग इज 5। थोड़ा सा मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 5 कितना था, 560। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 560, राइट, 560 इज द रिमेनिंग, राइट। अच्छा एक बात बताना यार, कितना है, अमित को कितना दिया है, कितना, 120 लीटर्स, राइट। मिल्क है कितना आपका, 80, राइट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप कैसे करोगे, पहले तो आप मान लो कि x इज द इनिशियल मिक्सचर माइनस हाउ मच, 120, प्लस आपने 80 किया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 560, यही तो होगा ना। मान लो x इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, राइट, इनिशियल क्वांटिटी मतलब स्टार्टिंग में कितना मिल्क एंड वाटर था आपके पास, दैट इज x, माइनस 120 आपने अमित को दे दिया, और प्लस उसमें 80 ऐड किया है, 80 लीटर्स ऑफ व्हाट, वाटर, 80 लीटर्स ऑफ मिल्क आपने ऐड किया है, and that is going to be 560, right? So 560 अगर इसको सॉल्व करें x के लिए, that is going to be 80 माइनस कर दे, that is going to be 600. So 600 will be the initial quantity, that is going to be option number 3, 600 liters, right? So guys, we have 4 different questions based upon this particular data. Again, I'm just telling you, I'm just letting you know, if you have any doubt, we are recording the session. This is not live classes, right? If you have any kind of doubt, any doubt in any of the part, any of the question, please do let us know in the comment section. We definitely reach to you and we solve your query, right? So in this particular video, I have taken this one set only, right? Again, we are making the video short so that you can get maximum out of it. Let's meet in the next video and see कि कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं from the memory based questions of SBI PU, right? Till then guys, thank you for watching this video and have a great day.